नमस्कार, धन्यवाद मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए। आई एम गेटिंग ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, दैट टू persistent request to operate the WT. See, the entire science of SSB is, the entire doctrine of SSB is that SSB is a problem solving behavior. Coming to the structure of these tests, this technique has been bifurcated into three parts. The first one is psychological technique, which undertakes the responsibility to deal with the thought process. It is dealt and evaluated by the scientist or the psychologist or the technical observer whosoever conducts the test. It is purely an inferential technique, जो संदर्भ लेती है, जो पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का. Coming to the technique itself, it has got four parts of the test. The first is TAT. Oh, you see, the entire SSB, in which three techniques are there: psychological, GTO, group testing officer technique, and the interview technique. These all three techniques have been bifurcated into three series: basic series, confirmatory series, and the final series. The idea, aim, and motto to conduct the basic series is to find out and gather or evaluate the basic ideas. The purpose to conduct the confirmatory series is to confirm all those ideas which evaluator has gathered from the basic series. And the purpose to conduct the final series is to reach to the final conclusion. Now coming to the science of WT, the psychology of WT, ये WT का मनोविज्ञान क्या है, ये सेकेंड टेस्ट है. और gentlemen, in the psychological aspect, TAT is the basic series, WT and the SRT is a confirmatory series, and SD, self description test, it is the final series. The basic series, which is TAT, it is an unconscious test, unguided, not controlled by the scientist, fully controlled by the individual. The second test on which we will deal with, we will have a talk, we will operate, that is WT, word association test. Now, Lala, please come to the science of this WT. The Hindi translation of this test is Sabd Sangat Pariksha, word association test. Let me operate the science of and technology of the doctrine of WT. बेटे लला, ये सेंटेंस मेकिंग टेस्ट नहीं है, इस पर मीनिंग नहीं लिखना है, वर्ड का मीनिंग नहीं लिखना है, वर्ड को इंटरप्रेट नहीं करना है, वर्ड के बियॉन्ड जाना है. गोइंग बियॉन्ड द वर्ड will enhance your imagination. And gentlemen, Lala, this is also the test of your imagination. आप मेरे वीडियो सुनने के बाद आप सवालात पूछना, मैं अगले वीडियो में उसको इंटरप्रेट कर दूंगा. अगर कोई चीज़ आपको कठिन लगती हो तो हमसे सवालात करना, बेटा मैं उसका जवाब दूंगा, उसको इंटरप्रेट कर दूंगा और ऐसा इंटरप्रेट करूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आप चाहे तो मेरी किताब ही खरीद सकते हैं, SSB व्हाट हाउ एंड वाई, जो इंडिया की बेस्ट बुक है, उपकार प्रकाशन की है, किसी बुक सेलर से नहीं तो मेरे पास बोलिएगा, मैं आपको भेज दूंगा. बेटा प्लीज कम टू द साइंस ऑफ दिस WT. इट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. हाउ यू आर एसोसिएटिंग द वर्ड विथ ए पार्टिकुलर आइडिया इज WT. आप वर्ड पर सेंटेंस नहीं बनाना है, आपको वर्ड के ऊपर आइडिया लिखना है. बाद में जब मैं इनको ऑपरेट करूंगा तो लाला मैं आपको बता दूंगा कि आइडियाज कैसे लिखी जाती हैं. और कोई जो सेंटेंस बना रहे हो वो केवल वर्ड का, आप वर्ड की आप मीनिंग लिख रहे हो कि वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हो कि आइडियाज लिख रहे हो. बिकॉज लाला एक बात और सुन लो,
a solution or a particular solution is the outcome of so many ideas. Try to understand me better, my version also. A solution is an outcome of so many ideas, but every idea cannot draw a solution. मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ लला, अगर दोबारा पूछोगे तो मैं इसको ऑपरेट भी कर दूंगा. A particular or a specific solution is an outcome of so many ideas, but every idea cannot draw a solution. We want ideas on WT. और लला देखो, मैं WT के थोड़ा सा मैं इसके कॉन्सेप्ट पर आ जाता हूं. लला, मैंने बताया था कि TAT इज अनगाइडेड टेस्ट एंड WT इज पार्टली गाइडेड टेस्ट. TAT is purely the test of your imagination and WT is also the test of your imagination. There is a meager difference between purely test of imagination and the partly test of your imagination. There is again difference between unguided and partly guided. क्योंकि इसमें हम वर्ड बोलते हैं कि दिस इज कंट्री, करेज, डिफिनिट, सक्सेस, एग्री, डिसएग्री, इसलिए ये पार्टली गाइडेड है. WAT इज पार्टली गाइडेड. हमने पार्टली गाइडेड को लला ऑपरेट कर दिया. सबकॉन्शियस टेस्ट, माइंड की देयर आर थ्री फैकल्टीज ऑफ द माइंड: अनकॉन्शियस, subconscious and the conscious. TAT is unconscious test and WT is the subconscious test, and also the test of your imagination. WT imagination का भी टेस्ट है. System does not supply you the meaning or the ideas, it only supplies the stimulus. मैं आपको इसको इंटरप्रेट करने के लिए TAT पे ले जाऊं. TAT में लला जो आपके सामने सीन दिखाई जाती है उसके कई नाम है. ओबीएस भी है, पिक्चर भी है, सीन है, और उसको टेक्निकल लैंग्वेज में स्टिमुलस बोलते हैं. ए सीन विच स्टिमुलेट्स यू. सिस्टम डज नॉट सप्लाई यू द मीनिंग. सिस्टम किसी वर्ड की मीनिंग को आपको की आपूर्ति नहीं करता, सप्लाई नहीं करता, ना आइडियाज देता है. इट ओनली सप्लाई द स्टिमुलस. Every word, whatever is being projected on the screen, becomes the stimulus. जो आपको स्टिमुलेट करती है उस पर आइडियाज को आपको फॉरवर्ड करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए. इट इज नॉट ए सेंटेंस मेकिंग टेस्ट. लड़ा सेंटेंस नहीं बनाना है, आपको उस वर्ड पर आइडिया लिखनी है. बाद में मैं ऑपरेट करूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि सेंटेंस मेकिंग टेस्ट नहीं है, ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है. इट इज नॉट ए सेंटेंस मेकिंग टेस्ट. दिस टेस्ट इवेल्युएट्स योर क्वालिटी ऑफ आइडियाज एसोसिएटेड विथ ऑल 60 वर्ड्स. 60 वर्ड्स हैं. एक वर्ड पर 15 सेकेंड का समय है. 15 मिनट में 7 वर्ड्स आपको करने होते हैं. Every word becomes a stimulus on which we normally communicate. These words are familiar to us: sister, brother, neighbor, teacher, principal, examination, war, country, weapon, commander, leader, lead, obey, disobey, discipline, indiscipline, laws, dislaws. These are the common words on which we normally communicate or we transact between us. These words provoke and stimulate you to react with the ideas which become the material for our evaluation. If you are reacting with context to meaning of the word, if you are making a routine sentence, that will not amount to WT. We want ideas, and just to draw the idea and just to drive the ideas, our idea, we have to go beyond the word. Lala, later on in the coming hours and coming minutes, I will keep on operating what will amount to become an idea, and how idea can be operated or generated, how it can be fertile and how it can be enhanced. Coming to the next, context.
or contents. If your projection does not carry an idea or the qualitative thought level, then it will become a sentence making but not the word association test. जो भी आप इसके रिस्पॉन्सेज लिखते हो, आंसर लिखते हो या वर्ड के संबंध में रिएक्ट करते हो, अगर वो आइडिया नहीं हुआ या जो आपका थॉट प्रोसेस का लेवल आ रहा है वो क्वालिटेटिव नहीं हुआ, बच्चे लला मैं ऑपरेट कर दूंगा कि कोई भी थॉट प्रोसेस क्वालिटेटिव के प्रोफाइल में, क्वालिटेटिव के गुणात्मक के परिभाषा में कैसे गिरता है, कैसे आता है, आप चिंता न करो, घबराने की बात नहीं है। इट विल बिकम सेंटेंस में गिटे। अगर आप उसको क्वालिटेटिव थॉट प्रोजेक्शन नहीं करेंगे, आइडियाज में दम नहीं होगा, उसमें पावर नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगा, उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, उसमें इवेल्युएशन नहीं होगा, उसमें इमेजिनेशन नहीं होगा, it will amount to be a sentence making test but not the WT, because it is not a sentence making test, it is word association test, शब्द संगत परीक्षा। आगे बढ़ो भाई, ऊपर करो, कम अप। अब देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, डोंट्स एंड डूज। प्रीचिंग इज नॉट ए WT, writing quotation is not a WT, borrowed ideas are not a WT, writing the meaning of the word is not a WT, writing fact is not a WT. Now क्या करना है, क्या करना है तो बहुत है, अभी मैंने 2 दिया है, धीरे धीरे आपको मैं नाश्ता दे दूंगा, उसके बाद आपको लंच दूंगा, ब्रेकफास्ट है। कन्वे द सेंस एंड आइडिया नॉट द मीनिंग, वर्ड की मीनिंग नहीं लिखनी, उसके सेंस को, उसके आइडियाज को लिखना है, उस पर ऑब्जर्वेशन देना है, उस पर इवेल्युएशन देना है, उस पर इमेजिनेशन देना है, वर्ड के बियॉन्ड जाना है। अप्रिशिएटिंग कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द माइंड एंड द वर्ड, आप वर्ड को कैसे अप्रिशिएट करते हैं। ब्रेव्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ब्रेव एंड बोल्ड आर रिकॉग्नाइज्ड। हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं माइंड से। कम अप। लड़ा एक मेरी बात को सुनो यार, कुछ शेर शायरी भी रह गई थी, एक स्टोरी रह गई है एसोसिएशन पर ही। देखो, मुकद्दर के खेल से कभी नाराज नहीं होते। लड़ा फिर से सुनना, थोड़ा सा मोटिवेटिंग शायरी है ये। तकदीर के खेल से कभी नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। इन हाथ की लकीरों पर मत यकीन करना, इन हाथ की लकीरों पर मत यकीन करना। मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। लला जरा एक संगत देखो, ये शब्द की कैसी संगत चाहिए, वर्ड्स का कैसा एसोसिएशन चाहिए, आइडियाज का कैसा एसोसिएशन चाहिए, उस पर एक छोटी सी लला स्टोरी है। लेट मी कम बैक माई सेल्फ टू दी स्टोरी। देयर वाज ए किंग, राजा ने जूरी, राजा के यहाँ एक जजेस की टीम होती थी जिसको जूरी बोलते थे। that team used to be called as a jury. Jury is a collection of so many judges. तो राजा ने जूरी के रिकमेंडेशन पर एक आदमी को फांसी की सजा दे दी। द मैन वॉज टू बी हैंग्ड टिल डेथ। महामंत्री राजा को अप्रोच किया और कहा, सरकार अगर आज्ञा हो तो सरकार एक निवेदन करने के लिए हुक्म दिया जाए। राजा ने कहा, आज्ञा है। कहा, सरकार जूरी ने कुछ न्यायिक फैसला नहीं दिया है, ये आदमी निर्दोष है, पूरे परिवार बर्बाद हो जाएगा। सरकार एक बार पुनः विचार करने के लिए कृपा किया जाए। और सरकार मेरी एक सलाह है, सरकार आज्ञा दे। बोला, हाँ आज्ञा है, बताओ। कहा, सर देव ऋषि से सलाह ले लिया जाए। पहले राजा के दरबार में राजगुरु हुआ करते थे। तो राजा ने कहा, ठीक है, उनसे समय तय किया जाए, टाइम फिक्स किया जाए। तो मंत्री ने देव ऋषि से बात किया। देव ऋषि से कहा कि राजन आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, कुछ सलाह लेना चाहते हैं, और राजन को आप बताइए कि राजन को हम कै बजे राजन आपको प्रणाम करें और आपके यहाँ आने का कष्ट करें। तो ऋषि ने कहा कि देखिए,
सुबह का समय उपयुक्त नहीं रहेगा, मेरा पूजा का समय होता है, शाम का समय उपयुक्त रहेगा। और राजा को बोलिए राशि आभूषण में नाम है, अपने साथ कोई सेना नाम है, सेना में नाम है, सेना के साथ नाम है, और कोई किसी सवारी से नाम है, एकदम साधारण इंसान के तरीके से नाम है। राजा चला, राजा तो कि बहादुर था, तो एक बागीचा पड़ा, उस पर तोता बैठा था। तोता ने कहा पकड़ो साले को, ये जा रहा, एक आध गहने राजा पानेगा। उसको गुंडों ने दौड़ाया, डकैतों ने दौड़ाया, लेकिन सिंस द किंग वॉज वॉरियर हिमसेल्फ, ही वॉज ए वेरी ब्रेव किंग, तो ये डकैत लोग उसको पकड़ नहीं पाए। और वो देव ऋषि के आश्रम में अप्रोच कर गया, वहां भी एक तोता बैठा था, पहले वाला तोता ही है, दूसरा तोता ये बैठा हुआ। दूसरे तोते ने कहा राजन आपका स्वागत है, हमारे तरफ से प्रणाम स्वीकार करें और देव ऋषि का आशीर्वाद स्वीकार करें। राजन देव ऋषि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आश्रम में राजन आपका स्वागत है। जब राजा देव ऋषि के सामने पहुंचे तो उन्होंने शॉक अलार्म आघात से पूछा कि देव ऋषि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये क्या तमाशा है, एक तोता गाली दे रहा है, दूसरा तोता स्वागत कर रहा है। तो देव ऋषि ने हिंदी के 3 शब्द में और अंग्रेजी के 11 लेटर्स में 11 शब्दों में उसका उत्तर दिया। हिंदी का 3 शब्द था संगत, और अंग्रेजी का 11 लेटर्स था एसोसिएशन। तो इस पर एक छोटा सा शेर है, संगत से गुड़ आत है, संगत से गुड़ जात, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। आइए मैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पर फिर से आता हूं, वापस आता हूं। चलो भाई ऊपर चलो, ये तो इसके ऊपर नीचे आओ। हाँ लल्ला, मैंने बोला था कि ये WT नहीं है, ये WT नहीं है, ये भी WT नहीं है, ये भी WT नहीं है। आपके मन में, आपके दिमाग में, दिल में सवाल आ रहा होगा। द क्वेश्चंस, a bunch of questions might be knocking the door of your mind कि आखिर में WT है क्या। तो लल्ला WT में इवैल्यूएशन मूल्यांकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन अवलोकन कर सकते हैं, उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन तार्किक निष्कर्ष दे सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, छोटे शब्दों में बता रहा हूं, बहुत नीचे आके बता रहा हूं लल्ला, ताकि आपको कोई कष्ट न हो और आपको लगे कि हर चीज आपके समझ में आ गई। इवैल्यूएशन लल्ला, व्हेन यू जज द वेट ऑफ ए थिंग, जब एक चीज का वजन आप मापते हो, जज करते हो, कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी और द कंट्री, समाज और देश के फायदे को देखते हुए जब उसके वजन को आप मापते हो, इट बिकम्स इवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, और जब लल्ला ऑब्जर्वेशन पाता हूं, जब व्हेन यू एनालाइज द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ए थिंग, light and dark side, plus and minus, before and after effects, and you reach to a logical evaluation, logical conclusion, logical observation, इसको ऑपरेट कर दूं। जब किसी चीज का बुरा अच्छा, अंधेरा और प्रकाश, उसके पहले का प्रभाव, बाद का प्रभाव, जब उसमें तार्किक निर्णय लेते हैं आप, उसके मेरिट डिमेरिट को आप एनालाइज करते हैं, तो वो लॉजिकल कंक्लूजन होता है। एग्जाम्पल के लिए लला, एक लड़के ने कहा हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, या हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, एक ये मूल्यांकन है। दूसरे ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो उस लड़के ने कहा भाई क्यों सहमत नहीं हो? कहा कि दिस रिक्शा पुलर राइट फ्रॉम 6 AM to 10 PM ही वर्क्स हार्ड बट ही इज नॉट सक्सीडिंग, ही इज नॉट सक्सेसफुल। ये वेल्डर है, ये लेबर है, ये दिन दिन भर मेहनत करता है, किसान है, दिन दिन भर मेहनत करता है, बट ही इज नॉट सक्सेसफुल। तो बोलो भाई ठीक है आप बता दो। ही सेज कि वेल प्लान्ड हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, डेडिकेटेड हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, इंटेलिजेंटली प्लान्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, स्मार्ट वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, ऑर्गेनाइज हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। यहां पर आपने ये एनालाइज किया कि आखिर में किस प्रकार का हम हार्ड वर्क करें कि हमको सक्सेस से श्योर हो जाए। तो हम टाइम प्लानिंग करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि वो आदमी सक्सेसफुल हुआ था, उसने कितना हार्ड वर्क किया था, वैसे मैं करूं, उसको मैं आइडियाज में लिखूंगा, देन इट विल अमाउंट टू बी ए WT एंड इट विल बी हाईली ग्रेडेड। आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल के लिए वॉर ब्रिंग्स पीस, it is evaluation. Preparation of war is an instrument to peace. It is the observation or the logical conclusion. Hard work brings success. Dedicated hard work brings success. It is logical conclusion. That is evaluation. Nation gives everything. Progressive nation gives a prosperity or everything. Relation brings harmony. Harmonious relation brings harmony. लला, यहाँ WT का थोड़ा हमने बेसिक चीज़ हमने बता दी, और अगर आपको इस पर कोई सवालात हो, कोई दिक्कत हो, कोई कष्ट हो, आई एम रेडी। और लला एक चीज़ बता दूँ, मैं ऑलरेडी आपके ट्रेनिंग का कैडर चला रहा हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अगर तनिक भी आपको दिक्कत होगी अफसर बनने में तो मैं ये आपका काम कर दूंगा। ये इसका नाम जे विमल डिफेंस एकेडमी है। बाकी आप चैनल पर आएंगे तो आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। कोई गलती हो तो मैं क्षमा करना। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।